اور بہت سے ایسے لوگ بھی یہاں پر ہیں جنہوں نے ابھی بپتسمہ نہیں لیا، اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج شام خداوند نے جو میرے دل میں جو وچن جو کلام ڈالا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں۔ اگر ہم پہلا سیموئل نکالنا نہیں ہے، میں ایسے ہی تھوڑا سا بتاؤں گا کیونکہ سمے کی کمی ہے۔ پہلا سیموئل اور 15ویں باب میں ہم جب دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ جو سیموئل ہے وہ سول کو مسا کرتا ہے اور فلسطینی اور عمالیکیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کو بھیجتا ہے۔ تو عزیزو، وہاں پر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو نے جانا ہے اور کسی کو نہیں چھوڑنا، خواہ بچے بوڑھے عورتیں، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے۔ جب اسرائیلی خدا کے لوگ جا رہے تھے غلامی سے تو فلسطینیوں نے پیچھے سے وار کیا، وہاں پر وار کیا جہاں کمزور لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، بچے تھے، اور اس لیے خدا ان سے ناراض تھا اور خدا نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا ان سے۔ سو وہ گیا، جنگ کے لیے گیا اور وہاں پر اس نے فتح پائی۔ فتح پانے کے بعد اس نے بہت سے مال مویشی اور وہاں کے راجا کو بھی زندہ اس نے چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ اور جب خدا کا بندہ سیموئل کو پتا چلا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو وہ تو کہتا ہے میں نے تو خدا کے حکم کے مطابق کیا جو بھی کیا، لیکن کہتا ہے خدا تجھ سے ناراض ہے۔ اس کی وجہ کہ اس نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جو ہے ہمیں پہلے سیموئیل کے 30ویں باب میں ملتا ہے کہ جو لوگ چھوڑے ہوئے تھے، جو راجا کو اس نے چھوڑا تھا لیکن راجا کو بعد میں سیموئیل نے کاٹ دیا، مار دیا، ختم کر دیا۔ وہاں ایسا ہوا کہ انہوں نے پھر سے حملہ کیا اسرائیلیوں کے اوپر، کیونکہ جو چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے پھر سے سر اٹھایا اور حملہ کیا، اور پھر سے وہ بچوں کو، عورتوں کو اسیر کر کے، قید کر کے لے گئے۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پاسبان سے، خدا کے داس پاسٹر جی سے ہم نے سیکھا کہ جو عمالیک کی اسپرٹ ہے یہ واپس وار کرتی ہے، یہ واپس لوٹ کے آتی ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہم یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے لوگوں نے نجات پائی ہے، بپتسمہ لیا اور خدا پر ایمان لے کر آئے، لیکن آج بھی زندگیوں میں گناہ ہے۔ ہم بہت سے گناہوں سے کمپلیٹلی توبہ نہیں کرتے، ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ادھورے توبہ کرتے ہیں، تو وہ پھر سے سر اٹھاتا ہے اور پھر سے وار کرتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو جس پہ ہم بات کریں گے، توبہ کے اوپر بات کریں گے۔ سو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایمان کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو کوئی ایک پڑھ دیں۔ جی کسی کو مل گیا تو پڑھ دیں۔ 17واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ اس لیے پرمیشور اگیانتا کے سمیوں میں اناکاری کر کے اب ہر جگہ سب منشیہ کو من پھرانے کی آگیا دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ آج کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو، سب بولے آمین۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ ہاللویہ۔
खुदा के लोगों, खुदावंद ने जहालत के वक्तों से चश्मपोशी का मतलब है नजरअंदाज किया, नजरअंदाज किया। बहुत से लोग गुनाहों में थे। अगर हम ये वाकया को देखते हैं तो यहाँ पर एथियस के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा बुत परस्ती में थे, गुनाह में थे, और उनको बोलते हुए कह रहा है कि बस सब जहालत के वक्तों से खुदा चश्मपोशी करके अब सब आदमी को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। तौबा करना बहुत जरूरी है। इसके एक रीजन है। अगर हम रोमियो 5 बाब और उसका फर्स्ट में देखते हैं तो लिखा है वहां पर कि एक ही इंसान से गुनाह इस दुनिया में आया। रोमन 5:12 इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि पास जिस तरह एक आदमी के स्वभाव से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के स्वभाव से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। हालेलुया। हम इस स्टोरी से, इस पैसेज से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। जब हम पैदाइश की किताब में देखते हैं तो वहां पर जो आदम था, जो खुदा ने उसको बनाया और अपनी शबीह पर बनाया और अपनी जो रूह है, अपना जो सांसें हैं उसमें डाली और उसको बागे अदन में रखा और उसको हुक्म दिया कि तू बीज के दरख्त का फल नहीं खाना, हुक्म दिया उसको। और जब इब्लीस सांप के रूप में आया और उसने हवा को वर्गलाया और वो उसकी बातों में आ गई, और उसके बाद आदम हवा की बातों में आ गया, और यूं वहां पर उनके फल खाने से गुनाह नहीं हुआ, गुनाह हुआ नाफरमानी से। उसके बाद भी खुदा ने उन्हें तौबा का मौका दिया। खुदा ने अगर हम पैदाइश 3 बाब और उसकी आई थिंक 6-7 आयत से देखते हैं, वहां पर खुदा ने उससे कहा कि ऐ आदम तू कहां पर है? उसने कहा मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। तो खुदा ने उसको वहां पर मौका दिया। क्या खुदा जानता नहीं था कि आदम कहां पर है? अगर हम ज़बूर 139 में देखते हैं तो वहां पर खुदा जो दाऊद है वो कहता है तू मुझे जानता और पहचानता है, तू मेरी सोचों से वाकिफ है। खुदा जानता था कि आदम कहां पर है, लेकिन फिर भी उसको मौका दिया गया कि शायद ये इकरार करे, लेकिन उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। वहां पर वो दोष लगाने लगा। उसने कहा जो औरत तूने मुझे दी है, मेरे साथ की है, उसने मुझे ये फल दिया। फिर खुदा ने हवा से कहा ये तूने क्या किया? उसने भी वही काम किया। उसने भी कहा ये मुझे सांप ने बरगलाया, मैं इसलिए मैंने खाया। यहां से जो गुनाह की शुरुआत होती है और वहां पर आगे हम जाते हैं, देखते हैं तो इन दोनों के हाथ 2 बच्चे पैदा हुए, काइन और हाबिल। एक किसान था और एक चरवाहा था, और दोनों अपने अपने हदिये नजराने खुदावंद के हुजूर लेकर गए, और वहां पर एक का कबूल हुआ, हाबिल का कबूल हुआ और काइन का नहीं कबूल हुआ। और खुदा ने कहा हम 4 बाब की 6 आयत में देखते हैं, और खुदावन ने काहिन से कहा तू क्यों गजबनाक हुआ, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू इस पर गालिब आ।
खुदावन ने उसे बताया कि गुनाह दरवाजे पर है, अगर तू इस पे गालिब नहीं आएगा तो वो तुझे दबोच लेगा, वो तुझे अपने अंडर कर लेगा। और वही हुआ, वो अपने भाई को खेत में ले गया और उसने उसके सर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया। खुदा ने इसको भी मौका दिया कि शायद ये भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, मान ले। हम 10वें बाब में 10वीं आयत में देखते हैं, फिर उसने कहा तूने ये क्या किया, 9वीं आयत में, तब खुदावन ने काहन से कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं है, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? खुदा के लोगों, खुदा ने इसको भी मौका दिया कि शायद ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, लेकिन वो भी आगे से तकरार कर रहा है, वो आगे से बहस कर रहा है कि क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है। लेकिन खुदा ने कहा, फिर उसने कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, खुदा ने इसे भी मौका दिया और पैदाइश 6वें बाब में बदी इतनी बढ़ गई कि खुदा को सब खत्म करना पड़ा। उनमें से नूह और उसका घराना बचाया गया। गुनाह का मतलब ही खुदा से दूर करना, जुदाई है। गुनाह का मतलब जो है वो, अगर हम खुदा से जुदाई करने पर पैदा हुए और गुनाह हुआ, खुदा इसलिए अब सबको हुक्म देता फिरता है, हुक्म देता है कि सब तौबा करें। सो अजीजों, आज खुदावन आपको और मुझे अपने कलाम के ताबे रहने की तौफीक बख्शे। अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि हम कहाँ पर हैं। बहुत से मसीही, मैं आपको पता है यूएई में कितना ज़्यादा पाप है, कितनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। अगर हम बाहर देखते हैं, गौर करें तो हालत, सिचुएशन इस कदर ख़राब हो चुकी है कि एक विश्वासी का उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम अपने आप को खुदा के हाथों में रोज़ बरोज़ नहीं देंगे तो चांस है कि हम कहीं भी गुनाह कर सकते हैं। पहले जो बहुत से ऐसे ईमानदार, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करते थे, अब वो छिप के गुनाह करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं तौबा करने के बाद भी, मिनिस्ट्री में रहते हुए भी, वचनों को सुनाते हुए भी गलतियों में है, पाप में है, और खुदा नहीं चाहता कि ये गुनाह में पड़े रहे। खुदा के लोगों, हमें अपनी सिचुएशन पर, अपनी हालत पर गौर करना है। हम बहुत सी गलतियां करते हैं। हम अपने बोलचाल के वसीला, बोलचाल के जरिया से, अपनी थॉट के जरिया से, अपने व्यवहार के जरिया से बहुत सारे पाप करते हैं। खुदा चाहता है आज शाम हम उनसे तौबा करें, और हम देखेंगे कि इंसान की नाफरमानी से दुनिया में गुनाह आया और वो गुनाह सारी दुनिया में फैल गए। इस वजह से हम गुनाह के अंडर में, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर हम गुनाह करते जाएंगे तो हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम गुनाह में पड़े रहें। हम कुछ लोगों की तरफ तवज्जो करेंगे जो बाइबल में जिनके करैक्टर हैं, जिन्होंने तौबा की। अगर हम दाऊद की तरफ निगाह करते हैं तो दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, और खुदा के बंदा के वसीला से खुदा ने उस पर जाहिर किया कि तू गुनहगार है खुदा। और जब
खुदा का बंदा जब उसने बैतसबा के साथ वो पाप किया तो खुदा उससे नाराज हुआ और खुदा के बंदे को, खुदा के बंदा नातन नबी को उसने उसके पास भेजा कि तूने ये क्या किया, और खुदा उसको बताता है और वो मान लेता है कि मैंने खुदा की नज़र में गुनाह किया। अगर हम ज़बूर 51, ज़बूर 32 में देखते हैं तो वहाँ पर वो वाज़िह तौर पर अपनी गलतियों का इकरार करता है। हम देखते हैं ज़बूर 51। अगर मेरे साथ कोई पढ़ने में रहमत कर दे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आमीन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो पूरे ज़बूर में आयत 1 से लेकर 13-14 तक अपनी गलतियों का इकरार करता है। कहता है मेरी बदी को मुझसे दूर डाल और मेरे गुनाह से मुझको पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता और मेरी गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया और वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। अगर खुदा का बंदा दाऊद अपनी खताओं को मान रहा है तो आज शाम हमें सीखने की जरूरत है कि हम भी अपनी गलतियों पर, अपने गुनाहों को जो पोशीदगी में हम करते हैं उनसे बाज आएं और ना शर्माएं और खुदावन के हुजूर चले जाएं और खुदावन से कहें, खुदावन मैंने तेरा गुनाह किया, मैंने तेरी हजूरी में पाप किया, मुझे बख्श, मुझे धो डाल। और यकीनन वो आपको साफ और धोने की कुदरत रखता है, वो आपको बचाने की कुदरत रखता है। उसका हाथ छोटा नहीं कि बढ़ा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। हमें उसके हुजूर पुकारने और मान लेने की जरूरत है। इस पाप भरी दुनिया में अपने आप को बचाएं, क्योंकि खुदा अपने लोगों को कहता है कि तौबा करो। कोई इंसान नहीं, खुदा कह रहा है कि तौबा करो। और हम देखते हैं कि नैनुआ के लोगों ने भी तौबा की। अगर यूना नबी की किताब में हम देखते हैं तो वहां खुदा ने अपने बंदा यूना को कहा, तू जा नैनुआ को और वहां जाकर मुनादी कर। और वो वहां से जाने के लिए भाग रहा था, जाना नहीं चाह रहा था। वो तरसीस को निकल गया और क्या हुआ कि जब वो जा रहा था तो वो जो जिस जहाज में था, जिस जगह में वो था, वहां तूफान आया और खुदा, वो जाके सो रहा है आराम से। खुदा ने उसको कहा, तू नैनवा को जा, वहां से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तूने जाके मुनादी करनी, जिनको तूने वचन कलाम सुनाना है, लेकिन वो नाफरमानी कर रहा है वहां पर। खुदा फिर वहां पर तूफान आया और बहुत से लोग परेशान हुए। और जब वो मुसीबत में पड़े तो क्या हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि हम कुरा डालेंगे और कुरा के नाम का निकला। और जब वो मछली के पेट में उसको डाल दिया गया, वहां पर वो खुदा से दुआ करता है और वो भी तौबा करता है। और जब हम देखते हैं यूना की किताब में से
किसी को मिल जाए तो तीसरे बाब में से पढ़ दीजिए, तीसरे बाब शुरू से पढ़ दीजिए। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों, यहाँ पर दूसरी बार खुदा का कलाम उस पर नाज़ल हुआ और वो वहाँ पर मुनादी करने लगा कि ये जो शहर है ये 40 दिन के बाद बर्बाद किया जाएगा। जब ये मुनादी कर रहा तो वहाँ के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाया। वो मुनादी के वसीला से उनकी जिंदगियों में एहसास पैदा हुआ और उन्होंने अपना मन फिराया और क्या बड़े क्या छोटे सभी ने तौबा की। और वहां के बादशाह जो था वो अपने तख्त से उतरा, तख्त से उठा, शाही लिबास जो उसने पहना था वो उतारा, टाट ओढ़ा, राख में बैठ गया, अपने को खाकसार किया और उसने ये मनादी करवाई कि सब के सब रोजा रखें, खा वो बच्चे हो, खा बुढ़े हो, क्या वो मवेशी हो, कोई भी हो, सब के सब रोजा रखें। और उन्होंने तौबा की और खुदावन ने वो जो गजब था जो उनको नाश करना चाहता था, खुदा उससे बाज आया। और आज हर एक तौबा के साथ खुदा हमसे बोलता है कि हम भी बाज आए, हम भी अपनी गलतियों को माने, पश्चिमान हो। हमारी जिंदगी में अगर हम गौर करें तो हम जानते हैं हर एक इंसान अपनी जिंदगी से बाखूबी वाकिफ है कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चलता है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसकी सोचें क्या हैं, उसके इरादे क्या हैं, वो खुद जानता है। तो हर एक जो तौबा जिसने की वो उसके साथ हमें मैसेज मिलता है कि हम भी अपने आप को खुदा के सामने झुकाएं। अगर हम लूका 15 बाब और उसकी 11वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर हम एक अड़ाऊ पुत्र यानी कि मुसरफ बेटे की स्टोरी को देखते हैं। वहां पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि एक इंसान के 2 बेटे थे और एक जो था छोटा वाला वो अपना माल स्वाब, अपनी यानी कि ब्लेसिंग, अपनी बरकतों को उसने कहा कि खुदा ऐ बाप मुझे दे दे, मेरा हिस्सा मुझे दे दे जो आता है, और वो उसको दे दिया गया। और जब वो अपना हिस्सा, अपने हिस्से की दौलत, ब्लेसिंग, बरकत को लेकर वहां से निकल गया तो एक दूर जाके मुल्क में बस गया। और जब वो अपना सारा माल, अपनी सारी दौलत खर्च कर चुका तो वहां पर सख्त काल पड़ा, वहां पर सख्त काल पड़ा। और हम 15वें बाब की हम अगर 15वें बाब की 15वीं आयत को हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि फिर उस मुल्क में एक बशिंदे के हाथ जा पड़ा और उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने और उसे सूर चराने और आजादी थी कि वो फलियां सूरों की खाता था। सिचुएशन, हालात इस कदर खराब हो गया कि उसको सूरों की फलियां खानी पड़ी।
और आगे हम जब देखते हैं तो फिर कहता है, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद के साथ रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। उसने कहा, है बाप, मैं आसमान और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस फिर वो उठकर अपने बाप के पास चला। उसने फैसला लिया, उसने डिसीजन लिया। होश में आया जब गुनाह जो है, जो गलती है, वो हमारी होश को उड़ा देती है, खत्म कर देती है। हम होश में नहीं रहते, हमें पता ही नहीं हम क्या हैं। अगर आज हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटा होश में आया, तो हमें भी होश में आने की जरूरत है और खुदा से कहना है, खुदा मैंने तेरा गुनाह किया, मैं तेरी नजर में गुनहगार हूं। फैसला लेना है, अपने आप को उसके अंदर कर दें, उसके हाथों में दे दें। और आगे बाप की हम मोहब्बत को देखते हैं। फिर वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, जो उसने इकरार, जो उसने सोचा था, जिस चीज का उसने फैसला लिया था, वो उससे जाकर कहता, ऐ बाप, मैं तेरा आसमान और तेरी नजर में गुनहगार हूं। मुझे अपने मजदूर जैसा करके रख ले, इस लायक नहीं कि अभी मैं तेरा बेटा कहलाऊं। लेकिन बाप को तरस आया, उसने अपनी सख्ती को खत्म किया और वो बाएं उठा के खड़ा है। वो वेट कर रहा है कि मेरा बेटा कब वापस आए। वही इज्जत, वही लेवल पे फिर उसने उसको दिया। उसने अच्छी पोशाक, पैरों में जूती पहनाई, हाथ में अंगूठी पहनाई, वो इज्जत उसने उसको फिर दी। फिर से उसने अपने बेटे को कबूल किया और उसे अपना लिया। और हम जब देखते हैं 22वीं आयत में, 23वीं आयत में, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा किया करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा है, खो गया था, अब मिल गया है, बस वो खुशी मनाने लगे। हालेलुया। जब हम खुदा की राहों से भटक जाते हैं तो हमारी हालत जो है वो मुर्दा सी है। हम खोए हुए हैं, हम खुदा को जानते ही नहीं। हमें अपने हजूर खुदावन के, अपने आप को खुदावन के हजूर लेकर आना है और फैसला करना है कि ऐ बाप, मैंने तेरे हजूर गुनाह किया। अपने गुनाहों को मानने की जरूरत है आज शाम, क्योंकि अगर हम देखते हैं इंसान 28 बाब और उसकी 13वीं आयत को हम देखते हैं। नीति वचन हम देखते हैं कि वहां पर मेंशन है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करता है और उनको तर्क करता है उस पर रहम होगा। हालेलुया। बहुत से विश्वासी, बहुत से ईमानदार लोग निजात याफ्ता जिन्होंने तौबा नहीं की, उनका तो छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस चीज को माना ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन बहुत से ईमानदार लोग, विश्वासी लोग अपने गुनाहों को छुपाते हैं
کہ فلاں میرا بھائی کیا کہے گا اگر اس کو میرے بارے میں پتا چلا، فلاں بہن میرے بارے میں کیا سوچے گی. چھپاتے ہیں، پوشیدگی میں گناہ کرتے ہیں، چھپ کے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کی ذات سے کوئی بھی چھپا اور ڈکا ہوا نہیں ہے. خدا نے جو میرے دل میں بوجھ ڈالا وہ آج خدا آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے آپ لوگوں کو. ایکسیپٹ کیجئے، شرمائیے نہ، اور ترک کیجئے ان ساری غلطیوں سے. وہ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو بہت سی دعائیں کرتے ہیں، ہم تو بچنوں کو بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو میٹنگز بھی ایوری سنڈے اٹینڈ کرتے ہیں، اور بیچ میں بھی ہم میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن عزیزو، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں ہماری زندگیوں میں. آج کل ہم جو پاپ کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، موبائل، سیل فون. اس کے دوارا ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارا ٹائم وہ ہمارا کھا جاتا ہے. ہم اپنے موبائل کے اوپر بہت سی ایسی چیزوں کو سرچ کرتے ہیں اور دھیرے 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 اس میں بڑھتے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کدھر جا رہا ہے. یہ سوچ کے کوئی بات نہیں، ایک ویڈیو دیکھ لیں، کوئی بات نہیں، یہ تھوڑا سا کر لیتا ہوں، یہ کرتے کرتے بہت کچھ کر جاتے ہیں. سو ہمیں آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم انسان 3 باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر میں خود پڑھ دیتا ہوں. 19واں باب اور سوری 3 باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اس طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آئیں. ہاللیلویا. میں نے ایک دوسری بائبل میں پڑھا، وہاں لکھا ہے روحانی تازگی کے دن آئیں. اگر ہم توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں، اس کی طرف متوجہ ہوں، تو خداوند کہتا ہے کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں گے اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. ہماری زندگیوں میں فیصلہ لینا ہے کہ پہلے مان لیں کہ ہم پاپ کی اس طرف سے ایسے دیں، ہم نے اس کو بیک کر دینا ہے، وہ ہمارے پیچھے ہو. کیونکہ خداوند نے جب ہم اس کا مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو توبہ کرنے کے بعد بھی ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن خداوند نے ہمارے گناہ اپنی پشت پیچھے پھینک دیے، وہ نظر کرنا چاہتا ہی نہیں، لیکن ہم ان کو بار بار اپنے مائنڈ میں یاد کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. ہم پہلا یوحنا 2:2 دیکھتے ہیں. اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا. ہاللیلویا. یہاں پر بڑی کلیئر بات ہے کہ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا.
अगर ये यूहन्ना 3:16 देखते हैं, 16:3, तो वहां पर लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। विश्वास करें, उसकी जात पर विश्वास करें, वो हमारे गुनाहों को उठा लिया जाएगा। वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो हमको देख ना सका, इस पाप भरी दुनिया में देख ना सका। उसने अपने प्यारे बेटे को, अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि हम नाश होने से बाज आ जाए, बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह की गुलामी में है, वो गुनाह का गुलाम है। हमें गुनाह की गुलामी से आजाद होना है, वो जंजीरें गुनाह की जो है उन्हें तोड़ के आजाद होना है। क्योंकि कलाम फरमाता है सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है हमारा। उसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। वो क्यों आया, उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या है। उसकी जात में कोई ऐसा गुनाह ना था, लेकिन वो हमारे लिए पाप ठहरा, वो हमारे लिए पापी बना ताकि हम बचाए जाएं, हम आजाद किए जाएं। इब्लीस शैतान हमेशा किसी ना किसी तरह से वर्गलाता है। वो शुरू से लेकर अब तक अपने लोगों को वर्गला रहा है, यंग जनरेशन को वर्गलाने की उसकी तकदों में रहता है। हमें उसकी चालों को, उसके फ्रेब से बचने की जरूरत है। और बहुत से लोगों को जब कलाम की मनाती की जाती है कि आप, खुदा फरमाता है कि आप तौबा करो, तो बहुत से लोग कहते हैं अभी तो मैं मतलब कि जवान हूं, अभी तो मैं यंग हूं, अभी मुझे कुछ टाइम इस दुनिया की ऐशो इशरत में, इस दुनिया के रंग में घुलने की जरूरत है। वो अपने आप को समझता है कुछ टाइम में गुजार लूं, और वो समझते हैं कि खुदा के आने में अभी बहुत देर है। और जो बूढ़े हो चुके हैं वो कहते हैं अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अभी मेरी उम्र नहीं रही कि मैं तौबा करूं। अगर हम पहला पतरस और उसकी दूसरा पतरस और उसकी 3 बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है खुदावन अपने वादे में देर नहीं करता जैसा देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारी बारे में तहम्मुल करके इसलिए कि हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब के सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। जैसा लोग सोचते हैं खुदा वैसा नहीं है। वो अपने वादे में देर नहीं करता, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए, इसलिए जैसा कि बाद लोग देर समझते हैं कि देर हो गई, बहुत से लोग समझते हैं हम अपने आबाओ अजदाद के टाइम से सुनते आ रहे हैं कि खुदा जल्द आने वाला है। यीशु मसीह ने भी मनाती की तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है। और यहां पर खुदा हमारी बाबत तहम्मुल करके बैठा हुआ है कि कोई हलाक ना, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो हमें इस चीज को हल्के में नहीं लेना। जब कभी भी खुदा के खात्मों के वसीला से या हम किसी तरह से भी
خدا کے کلام کی منادی ہمارے بیچ میں ہوتی ہے تو اس کی رسپیکٹ کیجئے پلیز، اس کی عزت دیجئے گا، کیونکہ خدا نے سب ناموں سے بڑھ کر اپنے کلام کو عظمت بخشی ہے، اس نے سب سے بڑھ کر اپنے کلام کو عزت دی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں، جب بھی کلام کی منادی ہوتی ہے، جب بھی کلام ہم تک پہنچتا ہے، کلام کا بید، بائبل کا بید، کلام کا بید ہمارے اوپر عیاں ہوتا ہے، کھلتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کریں۔ جب ہمارے اوپر کلام کا بید کھلے گا تو یقیناً ہم مجرم ٹھہریں گے اگر نہیں مانیں گے تو۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی۔ ہمارے ارد گرد میں بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی پاپ میں ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کرنتھیوں 3 باب اس کی 4 آیت میں ہم جائیں گے۔ وہاں پر پڑھ دیجیے گا پلیز، ہندی یا اردو میں۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ نہیں سوری، کون سا پڑھ لیں؟ 2 کرنتھیوں 4 باب، سوری 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ ہاللیلویہ، بڑا کلیئر ہے یہاں۔ اگر ہماری خوشخبری پر پڑتا پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں کے واسطے ہی پڑا ہے۔ خوشخبری سے مراد خدا کے کلام کو جب ہم نہیں سمجھتے اور قبول نہیں کرتے تو یہ ایک پردے کے روپ میں ہے۔ اور جو 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ جیسا میں شروع سے ہم دیکھتے ہیں اور میں نے بولا کہ ابلیس شاطر ہے، وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ کسی انسان کی اوپر خدا کے کلام کی خوشخبری کی روشنی نہ پڑے۔ اس جہان کے خدا نے عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے، تاکہ ہم خدا کی اس عجیب کام کو، خدا کے اس ریویلیشن کو، اس مکاشفہ تک نہ پہنچے۔ ہمیں ابلیس پر، شیطان کی ساری طاقتوں پر غالب آنے کی ضرورت ہے، اور ہم اگر اس پہ غالب آ سکتے ہیں تو یسوع مسیح کے اوپر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہی آ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ گناہ ہماری زندگیوں کو الجھا دیتا ہے، جس دوڑ میں ہمیں دوڑنا ہے، جس راہ پر ہمیں چلنا ہے، اس سے ہمیں باز رکھتا ہے، اس پر ہمیں جانے ہی نہیں دیتا، تاکہ وہ بہت رات دن اس چیز پر کام کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بیداری، خدا کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، تو ابلیس جو شیطان ہے وہ بھی اپنا کام بڑی تیزی سے کر رہا ہے۔ ایماندار رات کو سو جاتے ہیں لیکن وہ نہیں سوتا۔
وہ اپنے کام میں بہت زیادہ سخت ہے. وہ طرح طرح سے ہم الجھانے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں دنیا کی فکروں سے, کھانے پینے کی چیزوں کے دوارا ہمیں دباتا ہے تاکہ ہم فکروں میں گھیر کر دبا دیے جائیں. جب ہم فکریں کرتے ہیں, جب ہماری زندگیوں میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے, تو وہ جو کثرت ہے, جو فکریں ہیں, وہ اس کلام کو دبا دیتی ہیں جو ہم کسی کے وسیلہ سے بھی سنیں. آج شام ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں, اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کریں, اور کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس کے لہو کے وسیلے سے نہ دھلے. پہلا یوحنا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت. پر یدی جیسا وہ جوتی میں ہے ویسا ہی ہم بھی جوتی میں چلیں تو ایک دوسرے سے سہبھاگیتا رکھتے ہیں, اور اس کے پتر ییشو مسیح کا لہو ہمیں سب پاپوں سے شدھ کرتا ہے. آمین. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو لہو ہے, جو ہمارے واسطے بہایا گیا, وہ کسی ایلو گیلو نتھے گیلو کے لیے نہیں بہایا گیا, وہ ہمارے واسطے بہایا گیا. اگر ہم اس پر وشواس کریں گے کہ خدا کو ایکسپٹ کریں گے, اس کو اپنا ادھار کرتا, اپنا منجی, اپنا نجات دہندہ کر کے قبول کریں گے, اپنے آپ کو اس کے انڈر کریں گے, تو وہ ہمیں تمام گناہوں سے اس کا لہو دھوئے گا اور پاک کرے گا. اگر اب ہم 10ویں آیت میں پڑھتا ہوں, اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. ہم آگے دیکھیں گے افسیوں 2 باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک پڑھیں گے. تم لوگ اس سمے مسیح سے الگ اور اسرائیل کی پرجا کے پد سے الگ کیے ہوئے اور پرتیجا کی واچاؤں سے بھاگی نہ تھے, اور اساطین اور جگت کے ایشور تھے, پر اب مسیح ییشو میں تم جو پہلے دور تھے مسیح کے لہو کے دوارا نکٹ ہو گئے ہو, کیونکہ وہی ہمارا میل ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور الگ کرنے والی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. ہاللیلویہ. خدا کے لوگوں جو ہم اگلے زمانہ سے مسیح سے جدا تھے اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدوں کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید دنیا میں خدا سے جدا تھے ہم لوگ. ہمارے اندر وہ جدائی تھی, وہ پاپ کی وجہ سے جدائی تھی, اور مسیح یسوع نے اپنے کفارے کو جو ہم نہیں کر سکتے تھے, مسیح یسوع نے اپنا خون بہا کر وہ کام کر دیا. وہ جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا, ہٹا دیا بیچ میں سے. کیونکہ پرانے زمانہ میں جو پاک مقام پہ جانے کے لیے پریسٹ ہوتے تھے, کاہن ہوتے تھے, انہیں اپنے آپ کو پاک, کوئی عام بندہ نہیں جا سکتا تھا وہاں پہ, انہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی تھی. اور وہ جو تھے, جب انہیں اندر بھیجا جاتا تھا
तो उनको एक रस्सी के साथ बांध कर बेचा जाता था। अगर उनके अंदर जरा सा भी पाप हो तो वो वहां पे खत्म। अगर उसका कोई हलचल कोई अता पता ना हो तो उसको खींच के निकाल लेते थे। तो खुदा ने वो काम किया, वो जुदाई को खत्म कर दिया। वो पर्दा जो फटा, ऊपर से फटा, उसके पार जो पाक मकाम था उसके पास हमें जाने की रसाई बख्शी और अपने खून के स्वभाव से नजदीक हो गए। यीशु मसीह के खून के स्वभाव से नजदीक हो गए, क्योंकि वही सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। खुदा के लोगों, खुदा ने अपना काम कर दिया, अपने बेटे अपने पुत्र को दे दिया, उसने अपना काम कर दिया। अभी हमारा काम है, हमें उस पर विश्वास ईमान लाने की जरूरत है ताकि हम बचाए जाएं। टाइम थोड़ा रह गया तो मैं चाहूंगा कि नहीं ऐसे ही, अगर हम यीशु मसीह की तालीम पे गौर करते हैं तो यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 आयत में फरमाते हैं कि चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने। इसका मतलब सीधा वो चोर आता है चोरी करने, हलाक करने और मार डालने आता है, उसका काम और है ही नहीं कोई भी। लेकिन वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ, हमेशा की। क्योंकि वो जो जिंदगी अगर मैंने सीखा ब्रदर से कि वहां एक जगह हयात का पेड़ था बाग एदन में, यानी कि क्या कहना चाहिए उसको, वहां पे जिंदगी थी। और अदम का मतलब है खुदा की हजूरी, और जब वो वहां से निकाला गया तो खुदा की हजूरी से जुदा हो गया। तो खुदा यहां पर फरमाता है कि मैं इसलिए आया कि तुम सब जो जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वो फरमाता है कि दरवाजा मैं हूं, जो मुझसे दाखिल होगा वो निजात पाएगा। वो अपने कलाम में फरमाता है यूहन्ना 16 बाब उसकी 6 आयत में कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जो मेरे वसीला से बाप के पास आता है। खुदा फरमाता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अजीजों, अगर आपको नहीं पता कि राह क्या है, जिंदगी क्या, हक क्या है, तो सच्चाई वही है, रास्ता भी वही है और जिंदगी भी वही है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है और उसके पास अपने आप को ले आए। हमारे बहुत से गुनाह, हमारी जिंदगी में बहुत से गुनाह। ज़बूर 103 की 10 आयत में देखते हैं तो वहां पर खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है कि उसने हमारे गुनाहों के माफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उस कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसा पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताओं को हमसे दूर कर दिया। हालेलुया। खुदा हमारे गुनाहों के मुताबिक हमको बदला नहीं देता और हमारी बदकारियों के मुताबिक भी हमको बदला नहीं देता। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, ईमान लाएंगे
यकीनन खुदा हमें माफ करने की कुदरत रखता है। जरूरत है कि हम अपने आप को उसके सामने पेश करें, अपने आप को उसके सामने दे दें, सरेंडर करें, अपने आप को झुका दें। जब हम अपने आप को उसके सामने झुकाएंगे तो खुदा अपना शफकत वाला हाथ हमारी जिंदगियों पर रखता है और हमें एक्सेप्ट करता है, हमें कबूल करता है। खुदावंद यीशु मसीह आए ही गुनाहगारों के लिए थे इस दुनिया में, तो आज से मसीही, आज के जो लोग हैं वो, मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से ईमानदारों को देखा, वो गुनाहों से नफरत करते हैं, गुनाहगारों से नफरत करते हैं कि ये गुनहगार है, उनके साथ बोलना पसंद नहीं करते। हमें उनकी महफिल से, उनकी मजलिस में बैठने से खुदा ने जरूर मना किया, लेकिन उनके ऊपर अपना मोहब्बत को शो करें। अगर हम विश्वासी से प्रेम करेगा तो क्या बढ़कर करता है। गुनाहगार भी तो ऐसा ही करते हैं, वही अपने जैसों को ढूंढते और उनके साथ बैठते, खाते पीते। हमें प्रेम करना है, खुदा की मोहब्बत को निछावर करना है ताकि खुदा का काम हो सके। सो आए हम सब खड़े हों।